اگلے روز میں مقرر وقت پر ساتھیوں سمیت کانٹیکٹ سے ملنے کے لیے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ میرے مطلوبہ کے مطابق 2 کانٹیکٹ بھیجے گئے تھے جو ڈاک کا خاصا بڑا تیلا لے آئے تھے۔ میرے ساتھی مجھے کور کیے ہوئے تھے۔ میں نے تیلا لے کر نمبر 2 کے حوالے کیا جو اس سے لے کر فوراً میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ کنٹک کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی اپنے ڈاک کا تیلا لے کر وہ فوراً چلے گئے اور اپنی بقیہ ساتھیوں ہمراہ 2 ٹیکسیاں لے کر راستے میں 2-3 ٹیکسیاں بدل کر مختلف راستوں سے ہو کر 7 الگ الگ جگہ پر اتار کر تقریباً 2 گھنٹے میں ساتھیوں کو گھر پہنچا۔ یہ سب کرنے کا مقصد سیکیورٹی کے لیے ضرور تھا۔ اس بار ڈاک میں مطلوبہ خطوط کے علاوہ ہمارے گھروں سے ایک خط بھی آیا تھا اور 2 عدد کیمرے اور ہر کیمرے کے ساتھ فلم کا 12 رول بھی تھے۔ ایک 30 بور کا پسٹول جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا اور 7 کارٹون میگزین اور 40 اور 100 اور 50,000 بھارتی روپے بھی دیے۔ سینئر نے ہماری کارکردگی کو بہت سراہا اور یشونت سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک کیمرہ سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت تھا، جبکہ دوسرا کیمرہ آٹومیٹک تھا اور اس میں بلٹ ان فلیش گن تھی۔ سینئر کا ایک خط میرے لیے تھا جس میں مختلف ہدایت کے علاوہ یہ درج تھا کہ تمہاری کارکردگی و صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوگے لیکن تمہاری زندگی ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی ہے، لہذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ سائلنسر والا پسٹول تمہارے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے، اگر ضرورت بنے تو بے دریغ استعمال کرنا۔ آئندہ ہر بدھ اور اتوار کو 2 بجے دوپہر ہم تمہیں وائرلیس پر رابطہ کیا کریں گے تاکہ ضروری ہدایت کے علاوہ تم سب کی خیریت بھی معلوم ہوتی رہے۔ اب جواب میں صرف آل اوکے میسج ریسیو کہنا۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم جو بھی پیغام بھیجتے تھے اس سے ہم ٹریس ہو سکتے تھے، کیونکہ اس میں خاصا ٹائم لگتا تھا، لیکن لاہور سے ٹرانسمٹ ہونے والی پیغام چاہے کتنا بھی ٹائم لے لے ریسیو کرنے و مختصر ترین جواب دینے میں فقر کا خدشہ بہت کم تھا۔ مجھے اس نئے انتظام میں کئی کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اسے اپنا واب سمجھ کر بلانا چاہ رہا تھا، لیکن 2-3 روز بعد اخبارات میں ملی جلی سرخیوں میں الہ آباد میں ایک پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتار اور بعد ازاں اس کے 3 ساتھیوں کی گرفتاری مسلسل ٹرانسمیٹر یوز کرنے کی وجہ سے آگرہ سے عمل میں آئی اور ان خبروں نے میرے خدشات کی تصدیق کر دی۔ اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری سے انکشافات میں بھرے ہوئے تھے، لیکن کیا انکشاف ہو اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ تو کرنل شنکر نے مجھ سے ایک دن بات چیت میں بتایا کہ آسن نام کا ایک پاکستانی میجر بھارتی 39 ماؤنٹین کی وردی میں فین الہ آباد میں کسی اسپیشل کا کہہ کر ٹھہرا اور میس میں مقیم ایک کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میس میں کئی دنوں کی لاحصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹ مین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی مسلمان ہے۔ کرنل کی ڈائری لا کر دینے کی عوض اس نے بیٹ مین کو خاصی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی دے دی۔ یہ بیٹ مین کچھ زیادہ ہی محب وطن تھا۔ اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا۔ میجر آسن کا فوری گرفتار کر لیا گیا اور اس تصدیق ہونے پر کہ اس کا 39 ماؤنٹین ڈویژن جو پونا اسٹیشن میں تھا کوئی واسطہ نہیں، اس پر انتہائی تشدد کیا گیا، لیکن اس نے سوائے اپنے نام اور رینک اور نمبر کے کچھ نہ بتایا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اس کے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش کی۔ میں اس کو میجر کے بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، ہاتھ کاٹے گئے اور دونوں بازو بھی کاٹ دیے، لیکن میجر احسن کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آگرہ میں تھے جب میجر احسن کی دکان میجر احسن کئی دن تک ان تک نہ پہنچا تو وہ بوکھلا گئے اور بار بار ٹرانسمیٹر پر سے لاہور رابطے شروع کر دیے۔ بھارتی ٹرانسمیٹر نے ان کے سگنل کینچ لیے اور جگہ کا تعین کیا اور وہ تینوں بمیں ٹرانسمیٹر پکڑے گئے۔ کرنل شنکر جو کچھ مجھے بتاتا گیا میں سنتا گیا۔ میں نے خود کو ایسا سوال نہیں کیا جس سے کرنل کو مجھ پر شک ہو سکے۔ یہ روداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میجر کے تینوں ساتھیوں کو بھی تشدد کر کے شہید کر دیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ قائرین کرام،
قائرین کرام، آپ اس بات پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان سے بھارت ہمارے اتنی رقوم منتقل ہوئی تو ہم جیسے چائے جتنی چائے یوز کر سکتے ہیں۔ اس بات میں پاکستان سے جو ہمیں پیسے بیچتے تھے، ان میں میرا جیب خرچ پورے ماہ کے لیے 4000 اور ساتھیوں کے لیے 3000 پر بیٹھ ہوتا تھا۔ باقی جتنے بھی پیسے ہوتے تھے ان اخراجات کی مکمل تفصیل لکھ کر بھیجی جاتی۔ میں نے ساتھیوں کو میجر حسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی تفصیل بتائی اور انہیں سخت چوکس رہنے کا کہا، اور کہا جب بھی باہر جاؤ اکیلے نہیں جانا، بلکہ دو ہر کر جائے اور باہر جا کر آپس میں فاصلہ رکھے اور احتیاط سے چوکس ہو کر ہر لمحہ ذہن کی بیدار رہنا چاہیے۔ جب باہر جاؤ تو اسلحہ پاس رکھو، جب دیکھو کہ کام بگڑ رہا ہے تو پھر پیچھا کرنے والے پر گولی چلا دو اور بچ کر نکلنے کی کوشش کرو۔ ساتھیوں نے کیا کہ ہم نے سرائے بیرم خان میں گھومنے کے دوران ایک چاقو چیرے والی دکان سے ایسے 5 چریاں خرید لیے جو آدھے ان سے بھی کم ہے، چوڑیاں اور 1 فٹ لمبی ہے اور ہاتھ میں پکڑنے والا عام بیت کے موٹے دستے بند سکریو کے ذریعے فٹ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایسا ایک بیٹ مجھے بھی دیا۔ چری واقعی بہت سخت اور بے حد کی تھی۔ بیت کے اندر پٹ ہونے کی وجہ سے دستہ بیت کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ واقعی کارآمد ہتھیار تھا جس سے آواز نکلنے بغیر ہی دشمن کو ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان سے بھیجے گئے سائلنسر پسٹل کو رکھنے کے لیے کور اور ایسی بیلٹس بھیجی گئی تھی جس سے پسٹل لباس کے اندر بالکل چپ جاتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو دوبارہ تنبیہ کی کہ پسٹل اور چری کا استعمال اس وقت کیا جائے جب کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ ساتھیوں کو میجر حسن کا بتانے اور بیدار کرنے کے واقعہ ہمارے تسلسل کے روز بعد کا ہے، ورنہ گزشتہ پیر کو ہم نے پاکستانی کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی تھی اور بھیجی تھی۔ اگلے روز میرے ساتھیوں نے دودھ دہی کی دکان سے ڈاک کا تیل یشونت سے وصول کرنا تھا۔ منگل کو ساتھیوں نے یشونت سے ڈاک وصول کی اور کاپیاں کر کے بدھ کے وہ کاپیاں مجھے مغل ہوٹل میں دے دی۔ کافی کے علاوہ یشونت کا ایک لفافہ بھی مجھے دیا جس پر موسٹ ارجنٹ لکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی ارجنٹ مسئلہ درپیش ہے، آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں۔ بدھ کو رات 8 بجے گولچر سنیما کے ریسٹورنٹ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بدھ کو رات 8 بجے گولچر ریسٹورنٹ میں الگ الگ جا کر بیٹھ جائے اور میری یشونت سے ملاقات کے دوران چوکن نہ رہے۔ میں جان بوجھ کر ریسٹورنٹ میں 15 منٹ لیٹ پہنچا۔ پہلے سے میرے وہاں بیٹھے اور ساتھیوں نے گرین سگنل دیا۔ یشونت کونے کے ایک میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے دیکھ کر اس کی باتیں کھل اٹھی۔ بہت انتظار کروایا آپ نے تو مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف 15 منٹ لیٹ ہوا، بہرحال بتائے کیا ضرورت آ پڑی جو اتنا ارجنٹ ملنے کو کہا۔ یشونت نے میرے آگے ہاتھ باندھے اور کہا کہ میری زندگی اور عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ چند سیکنڈ چپ رہنے کے بعد وہ گیا اور صاحب آپ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں، میں سمی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کل شام میں نے ان کے ہاں کیا تو سمی کی ماں نے مجھے الگ لے جا کر بتایا کہ سمی کا ایک خریدار آیا تھا اور وہ سمی کے 35,000 دے رہا تھا، لیکن تم پرانے اس لیے میں نے اسے 1 ہفتہ کا ٹائم مانگا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر کہ 1 ہفتے میں تم 35,000 دے کر سمی کو لے جاؤ ورنہ میں اس کی بابو کے ساتھ بھیجوں گی۔ ابھی معلوم نہیں کہ وہ سچ بولی یا جو ٹھیک کر۔ یشونت نے میری طرف امید بڑی نظر سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یشونت بابو اس معاملے میں کیا کر سکتے ہو، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ گڑگڑانے لگے۔ یشونت بولا آپ جانتے ہیں میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا، آپ میری آخری امید ہے، آپ مجھے روپے ایڈوانس دے دیں، میں باقی جو ڈاک دیا کروں گا اس میں سے آپ کا منحا کر لیا کریں۔ میں نے کہا یشونت بابو آپ کی لائی ہوئی سب ڈاک ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی، بس وہ ڈال میں رکھتا ہوں جو مطلب کی بات ہوتی ہے، جو باقی جو روپے پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں بہت زیادہ ہے، آپ سے دوستی کی وجہ سے میں نے یہ آگے جواب دینا ہوتا ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ اگر تم کرتارپور والی فائل جنرل کے دفتر لا کر دے دو تو تم کو رقم مل سکتی ہے، لیکن وہ تو جنرل صاحب کی سیب میں اور چابیاں جنرل صاحب کے پاس ہوتی۔ یشونت نے مایوس سے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے فوراً سکوت کو توڑا اور کہا یشونت صاحب ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، آپ کے بقول جنرل صاحب کی سیب کھولتی بھی آپ ہے اور بند بھی آپ کرتے ہیں۔ اس دوران صابن کی ٹکیا پر چابی کے نقش لے جا سکتے، آپ نقش لے اور چابیاں بنوا لیں۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد آپ آسانی سے سیب کھول کر فائلیں نکال سکتے ہیں۔ دفتر سے واپس 0 فائلیں میرے ساتھی کو دے دے اور رات کو واپس 0 فائلوں کے ساتھ 35,000 بھی لے لینا۔ یشونت سوچ میں پڑ گیا اور اس کے سوچ در کی وجہ تھی۔ میں نے اسے زیادہ سوچنے کی مہلت نہیں اور کہا کہ نقش لینے سے لے کر چابی سے سفید کھولنے 2 منٹ کا کام ہے، آپ پہلے بھی رسک تو لے ہی رہے ہیں، اپنی پیار کی خاطر یہ بھی لے لے ورنہ ایسے ہی گھٹنے مر جائیں گے اور آپ کی آتما کو شانتی بھی نہیں ملے گی۔
यशवंत जुनून में अगर कहा कि जब जिंदगी में खुशी न हो तो जीने का मजा कब आते है, जिंदगी रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क ले लूंगा। साबुन की टक्के मैं आज ही लेता हूँ और फिर अपना काम शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला तो मैं फिर सलमीन मेरे हाथ गई। मैंने कहा लेकिन सच ही हो तो मौका बना ही लिया जाता है। इसने कहा ठीक है, आप रुपया तैयार रखे, मैं फाइल लेकर ही आऊँगा। इसके बाद मैंने यशवंत से कहा कि कल से लेकर जब तक आप वो फाइल नहीं ले आते तब तक मेरे दो साथी रोजाना इस दुकान के आसपास रहेंगे। यशवंत ने खुश में कहा ओके और नमस्ते कहता हुआ चला गया। इसके जाने के बाद 10 मिनट के वक्फे से मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलते अपने साथियों से कहा कि कल से रोजाना 2 साथी इस दुकान के आसपास रेस्टोरेंट की नजर में रहे। जब यशवंत कोई आम फाइल आप लोगों को दे तो घर पहुंचकर मुझे से फोन पर राबिता करे और फिर मुगल होटल के रेस्टोरेंट में मुझे पहुंचाए। साथियों ने ओके कहा। इस दौरान के बाद हम हर रोज यशवंत की डाक का इंतजार करने लगे। मेरे 2 साथी रोजाना इस दुकान के आसपास यशवंत को नजर आते। आखिर मुकर्रर तारीख पर यशवंत ने डाक दिया और साथ तमाम खास स्वीपर्स के नाम और किसी अफसर के दफ्तर की सफाई करता है सारी डिटेल हमें पेश की। हमने इन तमाम फाइल की तस्वीर बनाई। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए काफिया भी तैयार कर ली। इस दौरान अब्दुल करीम भी 4 सफ़हात और मुश्तमिल एक अपनी तहरीर दे गया। अब्दुल करीम जितनी अच्छी उर्दू बोलता था इसके मुताबिक इसकी लिखाई इतनी अच्छी नहीं थी। अब्दुल करीम ने अपने और कर्नल शंकर के मुतालिक बहुत कुछ लिखा या मुख्तसर बयान करता हूँ। इसने कहा कि कर्नल शंकर सख्त भी और मगर नरम दिल भी बहुत है। मेरे अप्रेंटिस के ऑपरेशन के सिलसिले मेरी फुल हेल्प की मुझे फल वगैरह ला कर देता रहा, पैसे भी देता है। इसने जो खास बात की वो ये कि रात को कर्नल सोते में भारतीय हुकूमत और फौज को गाली देता है और कहता है भारत ने मशरक़ पाकिस्तान अलहदा करवा कर बहुत बड़ी गलती की। आइंदा जो भी जंग होगी वो इटमी जंग होगी। इस जंग में सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे और भारत अकेला रह जाएगा। भारत को टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। इटमी जंग मुसलमान तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर हिंदू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर जो बगावत होगी इस बगावत में भारत छोटे छोटे रियासतों में तकसीम हो जाएगा। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि इस जंग से पहले भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए ताकि वो इटमी जंग न हो सके। ये सब बातें कर्नल शंकर ख्वाब में सोते हुए बोलता था। इस तहरीर को पढ़कर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब्दुल करीम काबिल एतमाद आदमी और दूसरे मैंने फैसला किया कर्नल शंकर के मजीद करीब होकर इससे अहम मालूमात हासिल करूँ। अब्दुल करीम ने ये भी लिखा कि सुबह जब वो बेदार होते तो मुझसे रात वाले अपनी सारी बातें पूछते। जब मैं उसे बताता हूँ तो कहते शुक्र है तुमने सुनी, किसी और ने नहीं सुनी। फिर मुझे वो 15 रुपये दे देते और कहते हैं कि खाओ पियो और जान बनाओ क्योंकि आइंदा जंग में तुम मुसलमानों ने बहुत अहम रोल अदा करना है। यशवंत के दिए हुए स्वीपर के नाम मैंने अपने इन दो साथियों के जो पहले स्वीपर की निगरानी कर रहे थे इन 3 स्वीपर का हैंडल करना था। समी की माँ की दी हुई मोहलत अभी बाकी थी और मैं इस मोहलत में इजाफा भी करवा सकता था। यशवंत को सेफ की चाबियां बनवाने और मखलूक फाइल निकालने में जो दुश्वारियां पेश आ सकती थी वो भी मेरे पेश नजर थी। लेकिन मैं और मेरे साथियों का हाल ये था कि सुबह से शाम तक यशवंत के दफ्तर आने तक कामयाबी आस लगाए बैठे रहते। शाम को जब यशवंत सर झुकाए खामोशी से गुजर जाता तो हम सब भी मायूस हो जाते थे। ये दरअसल तारापुर के इटमी बिजली घर के मुतल्लिक मालूमात की अहमियत और वन टाइम मिशन होने की वजह से था। बाज़ औक़ात मुझे ख्याल आता कि यशवंत अपनी मुहिम के खतरात पेश नज़र कई इस काम से दस्तबरदार ही न हो जाए। इसी सूरत में जरी के साथ इसकी नाजीब फोटो और हेडक्वार्टर की वो फाइल जिस पर क्लासिफाइड एंड कंट्रीब्यूशनल लिखा था कि देते वक्त जो फोटो ली थी इसका सहारा लेना पड़ता। लेकिन मैं चाहता था कि यशवंत अपनी दीरीन ख्वाहिश की तलब में ये काम करे। जब समी की माँ दी हुई मोहलत एक दिन बाकी रह गई तो यशवंत ने दफ्तरी टाक के साथ एक खत दिया जिसे मेरे साथियों ने पूरी मुझे पहुंचाया था। खत में यशवंत ने गोल्ड सिनेमा के रेस्टोरेंट में आज ही मिलने का कहा था और वो वक्त भी खुद पे कर लिया था। मुकर्रर वक्त पर मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो यशवंत की हालत नागुफ्त थी। इसका चेहरा इसकी मायूसी और नाकामी की वजह से बुझा हुआ था। इसने बताया कि जनरल कई रोज से दफ्तर नहीं आ रहा और इसने एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी जिसमें से 4 दिन गुजर चुके हैं और छुट्टी से पहले के 2 दिन में जनरल ने इस तलब के और नहीं मौका मिल सकता कि जनरल के दफ्तर में दाखिल हो सकूं। जब भी जनरल के दफ्तर की तरफ या मीटिंग हो रही थी यशवंत अपनी नाकाम सी हद दर्ज मायूस था। इस लगा अब समी का उसूल नामुमकिन हो गया है। मैंने इसकी डांस बांधे और कहा कि जनरल की छुट्टी खत्म होने दो फिर मौका मिल जाएगा।
यशवंत ने कहा कि मौका तो यकीनन मिल जाएगा मगर भी फायदा होगा। समी की माँ की दी हुई मोहलत तो कल खत्म हो रही। ये ऐसा मौका था जिसमें यशवंत की मुद्दत बढ़ाकर इसे तरोताजा करना था। मैंने यशवंत से कहा कि वो दिल छोटा न करे, समी यकीन से ही मिलेगी। मैंने उसे 1000 रुपए दिए और क्या कि ठीक 9 बजे वो इसे समी के बाला खाने पर चलेगा। समी की माँ को मजीद मोहलत देने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। यशवंत और मैं इकट्ठे रेस्टोरेंट से बाहर निकले। वो अपने घर की तरफ चला गया और मैंने टैक्सी पकड़ी और सीधा समी के बागले पर पहुंच गया। मैं दरअसल महफिल जमने से पहले ही समी की माँ को ये ब्रीफ करना चाहता था। जबकि मैं वहाँ पहुंचा तो महफिल सजाने की समा हो रहा थे। मैंने समी की माँ से अलहदगी में ले जाकर कहा कि आज रात में और यशवंत 9 बजे तुम्हारे यहाँ आएंगे। यशवंत का मोहलत मांगने पर पहले तुम इनकार कर देना। मेरे बहुत ज़्यादा शरारत करने और यशवंत के लिए मेरे 5000 पेशगी देने पर इसे मजीद 10 दिन की मोहलत दे देना। ये बात समझा कर मैं वापस होटल चला आया। 9 बजे तक तैयार होकर और पैसे लेकर मैं फिर चौड़ी बाजार में समी के बालाखाने के करीब पहुंच गया। यशवंत वहाँ पहले ही पान की दुकान पर खड़ा था। कहने लगा मैं तो 8:30 बजे ही यहाँ पहुंच गया था और पान की दुकान पर ही से सोडा और गिलास लेकर मोड बना रहा था। हम दोनों समी बालाखाने में इकट्ठे दाखिल हुए। महफिल शुरू हो चुकी थी। मैंने समी की उमा को इशारे से पिछले कमरे में बुलाया और कमरे में आ गए और साथ हम दाखिल हो गए। मैंने यशवंत से कहा कि जो कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। यशवंत ने मजीद मुद्दत मांगी तो समी की माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी साहिब जी हम लोग तो खुली किताब की तरह इस बाजार की हर तरफ सिमी हो रहे, एक से बढ़ के बोली लगाने को तैयार है और इधर आप एक दूसरी बात मोहलत मांग रहे हैं। सिमी को हासिल करने तो इसके ख्वाब देखने के लिए भी जिब बड़ी होनी चाहिए। तो मैं यशवंत बाबू के पुराने गाहक होने से उसे बता दिया वरना उन्हें 20 दूसरे की तरह दवानामा ही मिलता। अब मैं बहुत जल्द समी की ये रस्म अदा कर दूंगी। गाहक तो पहले ही मेरे इशारे के मुंतजिर है। यशवंत ने कई बार गड़गड़ा कर मोहलत मांगी लेकिन वो पुरानी गाहक टस से मस्त नहीं हुई। मैंने जब देखा कि यशवंत बिल्कुल मायूस हो चला तो मैंने समी की माँ से कहा आप न समझे कि यशवंत बाबू के पास पैसे नहीं, उन्होंने पैसे कई लगा रखे, बस इन वसूली और बस इन चंद रोज की बातें, आप अपनी रस्म की तैयारी करें। ये कहते हुए मैंने 5000 रुपए समी की माँ को दे दिया और कहा ये 5000 पेश गए। आप आज 10वीं रोज रस्म की तैयारी करें, इससे पहले ही आपको बकाया बुढ़िया ने 5000 तो फौरन दबूच ले और बोली बाकी 30000 तो समी की हुए और रस्म की अदायगी हुई नहीं होती। इस बाजार के बालाखाने वालों को दावत हुई, हम सब अपने गाँव को भी दावत देते। रात गए तक बाजार की सब लड़कियां मुजरा करते। समी के लिए जोड़ा 20 सिलवाने और यशवंत बाबू समी को मुदिकाई के लिए 12 तोले का सीट भी देना है और सब अखराजात यशवंत बाबू को ही देने होंगे। मेरे पूछने पर समी की माँ ने कहा कि मजीद 10,000 रुपए खर्च होंगे। मैंने उसे कहा कि वो 30,000 के साथ आपको मिल जाएंगे। अब बस तैयारी करें। सब बात ये तय करके हम कमरे से बाहर हाल में आ गए। महफिल अभी सही तरह जमी नहीं थी। यशवंत खुशी से बोले नहीं समा रहा था। समी की माँ ने मुझे बैठने पर बहुत जोर दिया मगर मैं एक जरूरी काम का बहाना करके वहां से निकला है। जबकि यशवंत अभी से खुद को आधा दूल्हा समझने लग गया था और बड़ी शान से महफिल में बैठ गया। इसकी जेब में मेरे दिए हुए 1000 रुपए कुल बुला रहे थे। मैंने चलते चलते यशवंत से कहा कि कल शाम 7 बजे मुझे गोलचर रेस्टोरेंट में जरूर मिले। अगले रोज शाम को यशवंत मुझे गोलचर के करीब ही नजर आया। मैंने उसे रेस्टोरेंट में जाने का इशारा किया और चंद मिनटों के वक्त के बाद मैं रेस्टोरेंट में दाखिल होकर इस टेबल पर जा बैठा। मेरे दो साथी हस्ब मामूल हमारी निगरानी कर रहे थे। यशवंत ने मेरे बोलने से पहले मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुज़िश्ता रात मैंने उसके ख्वाबों को बिखरने से बचा लिया। और जब चुप हुआ तो मैंने कहा कि यशवंत बाबू मेरे बस में जो कुछ भी था मैंने कर दिया। अब आगे आपकी हिम्मत है। 5000 मैंने समी की माँ को दिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको फाइल हर सूरत लेकर आनी होगी। मजीद 10,000 समी की माँ ने रस्म के लिए मांग लिए, मैं वो भी अदा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मजीद आपको थोड़ा सा काम करना होगा। जनरल के सेप में सिर्फ ये 2 फाइलें नहीं होगी बल्कि और भी बहुत सी आम फाइलें होंगी। जनरल की ऑफिशियल डायरी भी इस सेप में होगी। अवतारापुर की 2 फाइल्स के साथ दूसरी आम फाइल्स भी मुझे ला कर देंगे। जो फाइल में मौजूद कागजात आप ही टाइप करते हैं। इस जनरल से जो पहले जनरल तैनात है इनकी डायरिया भी वही मौजूद होगी, क्योंकि जाने वाले जनरल ये डायरी अपने साथ नहीं ले जाते हैं बल्कि न्यू आने वाले की रहनुमाई के लिए वही छोड़ जाते हैं। आपकी ये डायरिया भी फाइल्स के साथ हमरा जरूर।
यशवंत मेरी बात बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा कि यशवंत बाबू, जिस दिशत में आपने कदम रखे हुआ हर लम्हा आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। समय को महज अपना बना रखने के लिए हर माह आपको इसे मकबूल रकम देनी होगी। आपको समय की फरमाइशें पूरी करने के लिए भी खासी रकम की ज़रूरत रहेगी। आपकी इस मद में सब ज़रूरत मैं पूरी करूँगा, लेकिन आपको हमारी ज़रूरत पूरी करना होगी। अगर आप भरपूर ताउन मिलता रहा तो आपको पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मेरी सारी बातों के दरमियान यशवंत सिर्फ मुझे टक की बांधे देखता रहा था। मैं खामोश हुआ तो चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर बोला, साहब मुझे आपका नाम का भी नहीं इल्म और नहीं कभी आपने मुझे बताया और नहीं मैंने कभी पूछने की हिम्मत की है, लेकिन समय के बालखाने पर आपसे इत्तेफाकन मुलाकात होगी। इससे पहली मुलाकात से लेकर आज तक जो हालात गुजरे, इससे मुझे यकीन हो गए कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे, आपसे ताउन करते हुए मैं खुद गले तक फंस चुका हूँ। मेरी वापसी की कोई ज़रूरत नहीं और आपके साथ ताउन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत है कि आप मुझे जिंदा दरगोर कर सकते हैं और फांसी पर चढ़वा भी सकते हैं। इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। मैंने इसकी बात काट दी। यशवंत ने कहा, आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे भरपूर ताउन करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मेरी दुश्मन है और उन्होंने घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे घर से ही नफरत हो गई है। कभी कभी सोचता हूँ कि किसी ऐसी जगह चला जाओ जहाँ पर मुझे कोई न जानता हो। मेरी सारी जिंदगी दफ्तर में काम में गुजरे, जमा पूंजी कुछ भी नहीं, जिसे औलाद के ऊपर अपनी इज्जत से बढ़कर इसलिए खर्च किया कि वो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगी। वही मुझे घर से निकालने की तदाबीर कर रहे। पहले मेरा कमरा घर में सब खुला हुआ था और अब एक कोने की कुटी में उड़ना बिछोता हूँ। मुझे बताए बगैर मेरा जाती सामान और एक कार्ट स्कूटर में डाल दी गई। जवान बेटे और बेटियां होने की वजह बावजूद खुद ही ठंडा खाना बर्तनों में निकाल कर जार मार करना पड़ता है। मेरे मिलने वालों और दोस्तों को घर आने की इजाज़त नहीं, अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गया हो। इन हालात में पहले मैंने शराब और फिर समय के बालाखाने पर गम और दिल बहलाना, चाहे आरज़िया मसनूई से ही शराब और समय ने मुझे सुकून दे दिया। लेकिन इस सुकून के उसूल के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत तो है जो आप पूरी कर रहे हैं। अपने ताउन की बड़ी माकूल कीमत अदा की और समय के मामले में जिस तरह आपने मेरी मदद की, मैंने इसे कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। जनरल के सेफ के अंदर एक ऐसा खाना बना हुआ है जो एक अलग चाबी से खुलता है और रोज़ मैंने जनरल को इस खाने में एक नक्शा जिस पर मुख्तलिफ लकीरें खींचे गए थे और चंद अहम कागजात रखते हुए देख लिया। जनरल इस वक्त मीटिंग से फारिग हुआ था जब मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। मैंने जो कुछ टाइप किया इसकी काफिया प्रधानमंत्री नेवल और एयर हेडक्वार्टर भेज दी गई। टाइप शुदा असल कागजात जनरल ने नक्शे के साथ ही रुकवा दिए थे। टाइप करने की वजह से मुझे मालूम हो गया कि ये पाकिस्तान पर हमला करने का मुफस्सल प्लान था। वो नक्शा और कागजात अब तक भी सेफ में महफूज है और मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको ला दूं और मुझे यकीन है कि आप मुझे इस काम का भी मकबूल मुआवजा देंगे। यशवंत ने आज पहली बार मेरा पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का जिक्र किया था और मैं हैरान था कि आज से पहले इसने ये बात क्यों नहीं की। हालांकि बेतकल्लुफी के कई मौके आए थे जब वो ये बात मुझसे कर सकता था। शायद मेरी धमकियों और मेरे साथियों की गोली के खौफ से इसे बात बोलने की जरूरत नहीं हुई थी और आज आखिर वो दिल की बात जुबान पर ले ही आया। मैंने इसे कहा कि देखो यशवंत, जैसे कि मैं हम सब कुछ जानते हुए भी हमने कभी इस मसले पर बात नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। तुम्हें सिर्फ इतना यकीन दिलाता हूँ कि माली ताउन के अलावा तुम्हारी सिक्योरिटी का भी जिम्मा लेता हूँ। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो तुम्हें बचाने के लिए अगर दर्जनों लोगों की जिंदगी से खेलना भी पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर तुम पर आंच नहीं आने देंगे। जंगी नक्शजात और कागजात का हम तुम्हें बहुत माकूल मुआवजा देंगे। अगर वो हमारे किसी काम से कि हमारे लिए आम हुए तो थोड़ी देर मजीद गुफ्तगू करने के बाद मैं रेस्टोरेंट से चला आया। अब तक हर काम हस्ब मंशा हो रहा था, अब सिर्फ यशवंत की तरफ से कामयाबी का इंतजार था और मेरा एक एक लम्हा यही खबर सुनने के लिए बेचैनी से गुजर रहा था। इस मुलाकात के बाद यशवंत ने 2 मरतबा मेरे साथियों को डाक के पेपर दिया और वो इनकी कापियाँ करके वो पहुंचा देते थे।
और वो साथ फोटो भी बना लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो हफ्ते का दिन था, सर्दी खांसी बढ़ चुकी थी और मेरे अपने कमरे में सोफे पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। दोपहर 4 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मेरा एक साथी बोल रहा था। खुशी से इसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। इसने कहा साहब डाक मिल गया और सब काम हो गया। इसकी आवाज़ से ही मुझे महसूस हो रहा था कि ईश्वर ने मारिकस सर कर लिया। मैंने अपने साथी को कहा कि और घर चला जाए, मैं भी वही आ रहा हूँ। खुशी के मारे मेरा भी बुरा हाल था। मैंने जल्दी कपड़े तब्दील किए और टैक्सी साथियों के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में ही सोचता जा रहा था कि अल्लाह के करम और फजल से हमारे सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे और मुश्किल काम हमारे लिए आसान कर दे। और इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ अल्लाह पाक की फजल व करम से ही मिलती थी। साथियों के घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाज़ा बंद के तेला मेरे सामने उलट दिया। मेरे सामने फर्श पर तारापुर बिजली घर और टाटा रिसर्च सेंटर की 2 पायले और 4 अदद डायरा जिन पर सुर्ख पट्टियाँ लगी हुई थी और सितारे बने हुए थे और एक अलग पैकेट में निकाले हुए कागजात और नक्शा और मामूली डाक की टिकट थी और मामूल की डाक थी। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले ट्रिप के साथ। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।